Hello dosto, Jai Hind. I'm Kalki Joshi and today I'm going to read and make you understand chapter 1 of the social science textbook of class 6th. Let us begin with the locating places on the earth. This chapter is the first chapter and I'm going to read from this page. Okay, as this paragraph said that imagine that you're visiting a city for the first time. How would you find the places you want to visit? You might ask a local people for help, or you might look at a map of the city. In previous grades, you learned a little about maps, and in this chapter, we will study them in more detail. Let us play a game, examine the map of this small city, figure 1.1. Imagine that you just got off a train at the railway station and you want to visit the bank marked on the map. Okay, which way would you go? Or are there other possible ways? Can you locate the public garden, a school, the museum? Okay, and if you want to proceed from the bank to the market, okay, which way will you go? This is where a map comes in handy. जेंटलमैन इस पेज में क्या बता रहा है कि मतलब मैप की इंपॉर्टेंट क्या है। यहाँ पे एक एग्जांपल के माध्यम से बताया जा रहा है कि आप स्टेशन पर उतर गए हैं और आपको जाना है बैंक। तो ये जो नीचे 1.1 फोटो है इसमें दिखाया है कि कैसे आप जाएंगे बैंक में, किस रास्ते से, किस माध्यम से, कब किधर टर्न करना है और क्या करना है। दैट्स ऑल। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है। व्हाट इज़ मैप? अ मैप इज़ लाइक अ ट्रेजर गाइड। इट शोज यू okay where things are and how to get to them. Notice the four arrows, okay, in the top right corner of the map. Okay, we will soon see how they point to some specific directions and make maps okay even more helpful. This is all about the introduction of how what map क्या होता है उसमें बताया। यहाँ पे देखिए बता रहा है कि ये नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट जो डायरेक्शन दिखा रहा है उसके बारे में। Let's move to the next chapter. Okay, we are gonna read this a map and its components. From this simple example, we understand that a map is a representation or a drawing of some area. Okay, it may be a small area, a village, a town, etc. A bigger area, say your district or state, or a very large area like India or even the whole world. In a map, you look at the surface as if you are viewing it from the top. ओके, इज़ ऑल अबाउट द मैप। इसमें क्या बता रहा है दोस्तों कि लाइक मैप जो है किस तरीके से उस पर रिप्रेजेंटेशन बनाई जाती है, ड्राइंग के माध्यम से बताया जाता है कि कोई छोटे एरिया का भी हो सकता है जो कि शहर या कोई गांव का या बड़ा मतलब कोई डिस्ट्रिक्ट, कोई ज़िला या फिर कोई स्टेट का भी हो सकता है या फिर उससे भी बड़ा पूरे दुनिया या इंडिया एज अ कंट्री का भी। ठीक है, एंड एट लास्ट इज़ अ बुक ऑफ कलेक्शन ऑफ मैप्स। एज यू विल डिस्कवर there were several kinds of maps. The first is the physical maps, which mainly show some natural features such as mountains, oceans, and rivers. See an example in figure 5.2 in this textbook. This is all about the physical map. और द फिजिकल मैप में मेरे दोस्तों क्या है, एटलास जो कहते हैं, एटलास को कहा जाता है वो कलेक्शन ऑफ मैप्स की मतलब वो किताब है जिसमें तरह तरह के मैप्स होते हैं। एंड मैप्स के अलग अलग काइंड, जैसे कि फिजिकल मैप हो गया जहाँ पे नेचुरल फीचर्स की बात की जाती है, जहाँ पे मतलब माउंटेन, पहाड़ हो गया, ओके, समुद्र हो गया, नदी हो गए। सेकंड इज अ पॉलिटिकल मैप्स विच शो डिटेल्स ऑफ कंट्रीज और स्टेट बाउंड्रीज, सिटीज एट्सेट्रा। फॉर इंस्टेंस अ मैप ऑफ इंडिया with all its states, union territories and their capitals. तो पॉलिटिकल मैप क्या होता है मेरे दोस्त? दिस इज सेकेंड टाइप ऑफ मैप। पॉलिटिकल मैप में हमारे जो भी भौगोलिक देश होते हैं या फिर है ना स्टेट्स होते हैं या फिर बाउंड्रीज मतलब और भी जो भी देश या फिर कोई दूसरे शहर होते हैं तो उनकी बात की जा रही है। ओके, नेक्स्ट इज थीमेटिक मैप्स with a specific kind of information. Examples include figure 6.3 and figure 8.1 in this textbook. तो थीमेटिक मैप में क्या होता है कि लाइक समथिंग जिसको हम लोग ज़्यादा स्ट्रेस करे रहते हैं, ठीक है, मतलब किसी एक थीम पर, उसको थीमेटिक मैप बोल दिया। ठीक है, इन एडिशन देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। दैट फर्स्ट इज डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिम्बल्स। ओके, सो ये तीन कंपोनेंट हैं मैप के जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। डिस्टेंस, ओके, यानी कि कितना दूरी है, डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, एंड सिम्बल्स। You have already experienced the first two while navigating the map in figure 1.1. Let us now define them more precisely. मेरे दोस्तों यहाँ पे हम लोग और भी विस्तार से पढ़ने वाले हैं। Have you ever wondered how a huge place can fit on a small piece of paper? It is all thanks to the map scale.
let us go back to our map of a small city. Okay, each centimeter on the map as printed here represents a certain distance on the ground. Let us suppose it is a 500 meters. We say that the scale is 1 centimeter is equal to 500 meters. Now turn to the map of India in figure 5.2 in chapter 5 of this textbook. The scale is represented in the bottom left corner by a ruler with 500 written above its length and kilometer on the side. It simply means that this ruler, which measures 2.5 centimeter in the printed map, corresponds to 500 kilometers on the ground. दोस्तों यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे बता रहा है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द मैप. क्या आपने सोचा है कि इतना विशाल देश या इतना विशाल कोई राज्य, कोई स्टेट किस तरीके से एक मैप के कागज़ के टुकड़े पे कैसे आता है? विद द हेल्प ऑफ स्केल. मतलब स्केल के माध्यम से हम दिखा देते हैं कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 500 मीटर के बराबर होगा. ठीक है, तो अगर हम मैप पे नापते हैं या फिर मेज़र करते हैं कोई 1 सेंटीमीटर का, तो वो 500 मीटर के बराबर होगा. यही स्केल का काम होता है. दैट्स इट. So the actual distance between 2 points represented on the map depends on the scale that the map is using. ठीक है, तो कहने का मतलब है कहीं कहीं वो यूनिट चेंज होते हैं. कहीं कहीं होता है क्या कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर, कहीं होता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 किलोमीटर्स. सो हम उस यूनिट्स के माध्यम से हम लोग डिस्टेंस भी वेरी कर सकते हैं. Okay, let us return to the 4 arrows at the top right of the small city's map. They point to 4 directions, which are north at the top and the moving clockwise, east, south, and west. Okay, these are called cardinal directions, also cardinal points. मेरे दोस्तों, आपने देखा होगा कि मैप के ऊपर की तरफ है ना वो दिशाओं के नाम लिखे होते हैं. सबसे ऊपर जो होता है नॉर्थ होता है, देन गोज विद द ईस्ट, देन साउथ एंड वेस्ट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, तो इन सब डायरेक्शंस को हम लोग बोलते हैं क्या, कार्डिनल डायरेक्शन या फिर कार्डिनल पॉइंट्स. अदर दैन दीज इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर ऑल्सो यूज्ड. ओके, दे आर नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट. Most maps simply have an arrow marked with the letter N which points to the north direction. इसका मतलब क्या है कि इन 4 कार्डिनल डायरेक्शन के अलावा भी हमारे और भी इंटरमीडिएट डायरेक्शंस हैं जिनको हम लोग नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट कहते हैं. ओके, ज़्यादातर मैप में क्या होता है कि N लिख के जो कि नॉर्थ की तरफ दर्शाता है एरो दिखा देते हैं. दैट्स ऑल. अब अगला चलते हैं मेरे दोस्तों, सिम्बल्स. सिम्बल्स आर अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स. Okay, our map has small drawings of actual buildings and a few other elements. Okay, but there would not be enough space on the map of a large city of a country to draw them all. Instead, a symbol is used to represent these features. Symbols for different kinds of buildings. For instance, a railway station, a school, a post office, for roads and railway lines, and for natural elements such as river, a pond or a forest. In that way, numerous details can be shown in the limited space available on the map. मेरे दोस्तों, हम मैप पे सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ को दर्शाने के लिए. ठीक है, चाहे वो कोई रेलवे स्टेशन हो या फिर कोई बिल्डिंग हो, ठीक है, पोस्ट ऑफिस या फिर कोई रेलवे लाइंस हो, रोड हो, या कोई भी नदी या समुद्र हो या पॉन्ड हो. उन सब चीज़ों को हम लोग एक अलग रूप से दिखाते हैं, दैट इज़ सिम्बल्स. To make maps more easily understood by a variety of users. Okay, map users use specific symbols. Different countries use different sets of symbols. The Survey of India, a government body, has fixed a set of symbols for maps of India or parts of India. A small selection of them is shown in figure 1.2 on the page 12. तो ये क्या बता रहे हैं कि मतलब कई अलग अलग देश अपने अलग अलग सिम्बल्स इस्तेमाल करते हैं अलग अलग जगहों पर. ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे दिखाया गया है सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम, मतलब जो हमारे भारत का जो अपना खुद का है, तो उनके सिंबल्स यहाँ पे दर्शाए गए हैं इस पेज में. देख सकते हैं दोस्तों, रेलवे लाइन है पहला में, ब्रॉड गेज, मीटर गेज एंड द रेलवे स्टेशन. देन द रोड्स, दैट मेटल एंड अनमेटल रोड्स. देन द फॉलोड बाय द बाउंड्री, द इंटरनेशनल लाइन, एंड दिस इज द स्टेट एंड द डिस्ट्रिक्ट. Then we have here river, well, tank, canal, bridge, and temple, church, mosque, and chhatri. Post office, post and telegraph office, then police station, then settlement, and we have this is graveyard, and these are the trees and the grass. That's all. These are all the symbols what we can say that है ना वो दिखाई जाती हैं दोस्तों. ये हमारे भारत में मैप में यूज़ होता है. नेक्स्ट इज़ अ मैपिंग द अर्थ.
Mapping the Earth is a little more difficult because a planet is not a flat surface, isn't it? It nearly has the shape of a sphere. We say nearly because it is not a perfect sphere, but is slightly flattened at the poles. However, in practice, we will consider it to be spherical. Representing okay, a sphere accurately on a flat sheet of paper is not possible. To understand why peel an orange in such a way that you have just three or four okay large pieces of the skin, then try and flatten them on the table. You will see that you cannot do it without tearing them at the edges. जेंटलमैन ये क्या कह रहा है कि पूरे अर्थ है ना, द कंप्लीट पृथ्वी को अगर हम किसी फ्लैट सरफेस पे कैसे दिखा सकते हैं, है ना, हमें पता है कि हमारा पृथ्वी जो है नियरली स्पेरिकल शेप है, जिसको हम लोग जियोइड भी बोलते हैं इनफैक्ट, ठीक है। तो वो जो पूरा पृथ्वी है वो स्पीरिकल स्पेस मतलब शेप का है, और उसको हम लोग एक पेपर पे दर्शाना बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए हम लोग एग्जांपल में ऑरेंज को छिलके को छिल सकते हैं, तो क्या उसको फ्लैट करना इतना आसान है? नहीं, क्योंकि उसको उसको हम लोग एज पे काटना पड़ेगा। नाउ कंसिडर अ ग्लोब, okay, which is a sphere on which a map is drawn. This may be a map of the earth, the moon, the planet Mars, the stars, and the constellations in the sky, etc. The physical object like the one shown in the drawing on the next page is a sphere that is generally made of metal, plastic or cardboard. तो ये ग्लोब की बात करें मेरे दोस्तों कि ग्लोब जो है गोलाकार तरह का स्पेरिकल शेप होता है, एक्चुअली नॉट गोलाकार, सॉरी। सो स्पेरिकल शेप का होता है, उस पर हम पृथ्वी को पूरा दर्शा सकते हैं इजीली, ठीक है। सो हियर वी विल स्टडी द ग्लोब रिप्रेजेंटिंग the earth's geography, okay, because the globe and the earth have the same spherical shape. A globe will better represent the geography of the earth than a flat map. Let us now explore some of its features. तो ये क्या कह रहा है कि ग्लोब जो है एक मैप से बेहतर तरीके से दिखा सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों का शेप जो है सेम है, spherical, isn't it? So the first is all about okay, we are gonna explore the features. The first is understanding the coordinates. Imagine a big market in a city or town, okay, with neat rows of shops, okay, all the same size. You want to meet a friend at a stationery shop inside the market, but your friend does not know where the shop is. So you will give directions like meet me at 6 p.m. at the seventh shop in the fifth row from the entrance. This will allow your friend to precisely determine the location. तो ये क्या कह रहा है दोस्तों कि एक ऐसा शहर है जहाँ पे सभी दुकानें जो हैं जो एक साइज़ के हैं, ठीक है, और आप अपने दोस्त से मिलना चाहते हैं स्टेशनरी शॉप पे, तो क्या कहेंगे आप? उसको कहेंगे कि ठीक है, हम 6 बजे मिलते हैं, हम 7वें दुकान पे मिलेंगे 5वें रो में, है कि नहीं, एंट्रेंस से या फिर एक तरफ से। तो वही यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ कंसिडर अ चेस बोर्ड। To record moves by advanced players, letters are placed alongside the main pieces from A to H, see the image, and the numbers from 1 to 8, okay, in between the two sides. This simple system allows players to mark each square and record every move. Here, the white side has just opened the game by moving the queen's pawn 2 squares forward, a very common opening. Okay. So the pawn is said to have moved from D2 to D4. You see इनमें दोस्तों देखिए, इसको D2 से 4 में मूव कर गया, ये बताने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। Next, we are moving. The system used in these two examples may be called a system of coordinates. Thanks to their two coordinates, the stationery shop as well as the chess square on the chessboard can be precisely determined. तो मेरे दोस्तों ये जो दो हमने देखा, दो एग्जांपल में, एक जो है दुकान की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी हमने रो एंड दुकान का संख्या का इस्तेमाल किया, और यहाँ भी हमने ABCD अल्फ़ाबेट्स विद 1 2 3 till 8 नंबर्स का इस्तेमाल करके, तो ये दोनों क्या, ये कोऑर्डिनेट्स हैं। A similar system of coordinates is used in the world of maps to determine the location of any place on a map. Let us see how this system works. तो similar kind of coordinates हम लोग इस्तेमाल करते हैं हमारे रियल लाइफ में, okay, to locate the real map on the real earth. So first is the latitudes. Let us return to the globe. It is easy to identify the north pole and the south pole on it. Rotate the globe while it rotates. The fixed points at the top and bottom are the two poles. Halfway between them is the equator. Note the circle marking it.
तो ये क्या कह रहे हैं मेरे दोस्तों, लैटिट्यूड्स। ओके, तो ये देखने के लिए हमें ग्लोब की बात कर रहा है, हम उसमें देख सकते हैं कि एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल है। मतलब जैसे हम लोग घुमाएंगे ग्लोब को ना, तो जो जो पॉइंट घूमता नहीं है ऑन द टॉप मोस्ट, वो नॉर्थ पोल हो गया, नीचे साउथ हो गया, ठीक है। और जो बीच में सेंटर में होता है उसको इक्वेटर बोलते हैं। इमेजिन दैट यू स्टैंड ऑन द इक्वेटर एंड ट्रैवल टूवर्ड्स वन ऑफ द पोल्स। ओके, योर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इंक्रीजेस, ठीक है। लैटिट्यूड मेजर्स दिस डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। At any point of the travel, you can draw an imaginary line, okay, that runs east and west parallel to equator. Such a line is called a parallel of latitude, and it draws a circle around the earth. Again, it is easy to note on the globe that the largest circle in is the equator, while the circles marked by the parallels of latitudes grow smaller as we move northward or southward. तो ये क्या कह रहे हैं मेरे दोस्तों, that equator के parallel है ना, तो उसके पैरेलल में ही बाकी लैटिट्यूड्स होते हैं, ठीक है। एंड द इक्वेटर इज़ द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड बिकॉज ये सेंटर मॉस में होता है, और बाकी लैटिट्यूड्स नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो छोटा होता रहेगा, और नीचे भी आएंगे अगर इक्वेटर के तो छोटा होता जाएगा, ठीक है। तो इन सब को हम लोग जाके मतलब पोल्स पे मिल जाते हैं, ऊपर जाके नॉर्थ पोल में, नीचे जाके साउथ पोल में मिल जाता है, ठीक है। लैटिट्यूड्स आर एक्सप्रेस इन डिग्रीज, ओके, बाई कन्वेंशन। द इक्वेटर इज लैटिट्यूड 0 डिग्री. Okay, while the latitudes of two poles are 90 degree north and 90 degree south respectively, this is noted as 90 degree N and 90 degree S, ठीक है। मैं दोस्तों ये लैटिट्यूड जो है वो डिग्रीज में मेजर होती हैं, ठीक है। देखा जाए तो जो इक्वेटर है जो बीच में है वो हो गया 0 डिग्री, और ऊपर जाएंगे तो जो पोल्स आएंगे उसको 90 डिग्री नॉर्थ बोलते हैं, और जो नीचे आ जाएगा 90 डिग्री साउथ हो गया, साउथ पोल. There is a connection between latitude and climate. Around the equator, the climate is generally hot. It is called torrid. Okay, as you travel away from the equator towards one of the two poles, in other words, as your latitude increases, the climate becomes more moderate or temperate. And closer to the north and the or south pole, the climate grows colder or frigid. You will learn in science why is this so, एंड ऑल्सो वाई वी एक्सपीरियंस डिफरेंट सीजन्स इन द कोर्स ऑफ ईयर. तो दोस्तों यहाँ पे क्या बता रहा है कि जिस तरीके से हम लैटिट्यूड जो है हमारे क्लाइमेट पे भी डिपेंड करते हैं, ठीक है। मतलब उनकी वजह से क्लाइमेट डिफर होते हैं, बदलते हैं। जैसे कि इक्वेटर के बगल में या फिर ऊपर नीचे इक्वेटर के आसपास गर्मी ज़्यादा होती है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेट मौसम हो जाता है, और एकदम अगर हम लोग पोल से पहुँच गए तो बिल्कुल ठंडा मौसम होगा। यही आप इस पैराग्राफ में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, नॉर्थ पोल है ना, ये नॉर्थ, okay, latitudes and equator we are talking here. That's all. Let's move to next. That's longitudes. ये जो है अलग है. Imagine now that you travel from North Pole to the South Pole by the shortest possible line. Observe the globe. Okay, you will see that instead of passing through Europe and Africa, okay, you could just as well pass through Asia. The same distance would be the same. These lines are called meridians of longitude. Okay, दे आर ऑल हाफ सर्कल्स रनिंग फ्रॉम वन पोल टू दी अदर. तो ये क्या कह रहे हैं मेरे दोस्तों कि अगर आप नॉर्थ पोल से साउथ पोल में पहुंचना चाहते हैं विद द शॉर्टेस्ट रूट, ठीक है, तो वो एक तरह से एक लाइन बना देते हैं, या फिर वो लाइन दर्शाते हैं, वो लॉन्गिट्यूड हो जाते हैं, ठीक है। सो द लाइन्स कनेक्टिंग नॉर्थ एंड साउथ पोल दे आर नोन एज लॉन्गिट्यूड्स. इतना ध्यान रखिएगा. यू विल ऑल्सो लर्न इन साइंस दैट द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस. टू पुट इट सिंपली, लेट्स place a desk lamp a little away from our globe, focused on it, and imagine that this is the sun illuminating the earth, slowly rotating the globe eastwards. We can note that for some places on earth it is morning, while for others it is midday, evening, or night. When it's breakfast time in one country, it's lunchtime in another, and in a third country people are fast asleep. Okay, that is why by measuring the longitude of a place, we will also be measuring the time at that place. Let us see how. दोस्तों ये क्या यहाँ पे एक एग्जांपल दिखा रहा है कि पृथ्वी जो है अपने कक्ष पे भी घूमती है, गोल है ना, राउंड इन राउंड डायरेक्शन, ठीक है। तो वो जब घूमता है तो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि एक लैम्प को रख दिया है, और ग्लोब को जब घुमा रहा है तो हम देख रहे हैं कि जो लैम्प का जो प्रकाश है वो एक पार्ट ऑफ ग्लोब पे आ रहा है, दूसरे पार्ट पे नहीं आ रहा है। कहीं सुबह है तो कहीं शाम है, तो वो जो लैम्प है वो उसको सूरज मानना है, और जो ग्लोब है उसको पृथ्वी मानना है. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. टू मेजर लॉन्गिट्यूड्स वी नीड टू डिफाइन अ रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन. It is also called Greenwich meridian.
because in the year 1884, some nations decided that the meridian passing through the Greenwich, an area of London in England, would become the international standard for the prime meridian. It is marked as 0 डिग्री longitude. दोस्तों ये क्या कह रहे हैं कि हम अगर हम लोग दिखाना चाहते हैं ओके ऑल अबाउट लॉन्गिट्यूड्स, तो उसके लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट बनाना होगा, वो हमने प्राइम मेरिडियन बना दिया। 1884 में ये बताया गया था कि ग्रीनविच जो मेरिडियन है, यानी कि जो लाइन क्रॉस कर रही है ग्रीनविच को लंदन में, है ना, उस जगह को हम लोग प्राइम मेरिडियन मानते हैं, फिर उसको हम लोग 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड मानते हैं। Okay, just as latitude is a measure of the distance from the equator, okay, if you travel towards one of the poles, longitude is a measure of a distance from prime meridian if you travel along the equator. Okay, longitude too is measured in degrees westward or eastward. It increases in the value from 0 degree to 180 degree with the letter W or E added. Okay, for instance, using round figures, New York longitude is 74 degree west. Okay, while Delhi is 77 degree east and Tokyo's is 140 degree east. तो ये क्या कहना चाह रहे हैं मेरे दोस्तों कि हम प्राइम रीजन को हमने जीरो मान लिया, ठीक है, और जब हम लोग ईस्ट या वेस्ट डायरेक्शन में जब हम लोग चलेंगे तो वो जो है इंक्रीज़ होगा, ठीक है। इनफैक्ट अगर हम लोग देखें तो प्राइम रीजन के वेस्ट में जाएंगे तो नंबर इंक्रीज भी होगा विद द एडिशन ऑफ डब्ल्यू, या फिर वेस्ट उसमें ऐड हो जाएगा, और हम लोग ईस्ट डायरेक्शन की ओर जा रहे हैं तो उसमें ईस्ट ऐड हो जाएगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिया है कि न्यू दिल्ली का देखिए लॉन्गिट्यूड क्या है 74 डिग्री वेस्ट, एंड दिल्ली का है 77 डिग्री ईस्ट, एंड टोक्यो का 140 डिग्री ईस्ट, ठीक है। दैट्स ऑल मेरे दोस्तों, लेट्स मूव टू नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट पैराग्राफ, सॉरी। The latitude and longitude together are the two coordinates of a place. With them, you are now able to locate any place on Earth. You can now understand a statement such as Delhi lies in 29 degree north latitude and 77 degree east longitude. These values are rounded off, not exact. Okay? So ये मतलब लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स की बात कर रहे हैं कि यही दो कोऑर्डिनेट्स हैं जो हम एक जगह को ऑन दिस पृथ्वी पे लोकेट कर सकते हैं। Okay, so figure 1.3 on page 15 shows the parallels of latitude and the meridians of longitudes, okay, together on the globe as a blue lines. So ये आगे की बात कर रहा है, all these lines together constitute a grid for the globe. Okay, they are also called rigid grid lines, sorry. सो ये क्या कह रहे हैं कि दोनों लाइनें ये जो मिलती हैं जहाँ पे, फिर जब जो मिल के जो बनता है उसको हम लोग ग्रिड बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स एक दूसरे को मिलती हैं, दोनों को मिला के। ये देखो पिक्चर में मेरे दोस्तों बताया हुआ ग्रीनविच मेरिडियन दिखा रहा है और इक्वेटर दिखा रहा है। दिस शोज द वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड दिस इज ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड दिस नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। यानी कि हम पृथ्वी को हम लोग किस तरीके से भाग सकते हैं दो भागों में। हेमिस्फीयर मतलब क्या होता है, स्फीयर का हाफ हो गया है ना दोस्तों। सो this is all about this, and here in this we can say a map is somewhat map is shown of the India, and it shows that कहाँ पे 75.8 डिग्री ईस्ट ये बात हो रही है, उज्जैन एंड दिल्ली दिखाया है, कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कन्याकुमारी, इज ऑल एंशिएंट सिटी एंड मॉडर्न सिटी, ये सब दैट्स ऑल उनके नेम्स दिखाए गए हैं, दर्शाए गए हैं, कुछ खास है नहीं मेरे दोस्तों। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। यहाँ पे भी मतलब इंडिया का ही मैप दिखाया गया है, पॉलिटिकल मैप, एंड इनफैक्ट ठीक है, इनकी डिग्रीज देखिए, आप देख सकते हैं कॉर्नर्स में लिखे हुए हैं कितने डिग्रीज अप्रॉक्सीमेटली से गुजर रहे हैं। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पैराग्राफ, दैट इज अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन्स। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। Let's make the globe rotate again from west to east. That is how a planet spins around its axis, making a full turn every 24 hours. A full turn is 360 degrees. So this means 15 degree per hour. How? By 15 into 24 is 360, correct? तो 24 घंटा में अगर 24 घंटा में 360 डिग्री जाता है तो यानी कि डेफिनेटली दैट्स 15 डिग्री है ना, 15 डिग्री हर एक घंटा में, तब तो 360 होगा, ये वो बता रहा है। लेट अस नाउ मेक मार्क द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एवरी 15 डिग्री। Okay, so moving eastward from the prime meridian, we get 0 degree, 15 degree east, 30 degree east, 45 degree east, and so on. So on every 15 degree up to 180 degree east. It is the same as adding 1 hour of local time with each meridian. If it is 12 p.m. or noon,
at Greenwich. It is 1 p.m. local time at 15 degree east and 2 p.m. at 30 degree east and so on. But going westward, it is other way around. 11 a.m. local time at 15 degree west and 10 a.m. at 30 degree west etc. दोस्तों ये क्या बता रहा है कि जिस तरह से हमें पता चल चुका है कि 15 डिग्री यानी 15 डिग्री जो है वो एक घंटे में क्रॉस होता है या फिर एक घंटे का टाइम जोन होता है ना। तो अगर हम लोग प्राइम मेरिडियन को 0 डिग्री मान रहे हैं या फिर वहाँ पे 12 बज रहा है क्या दोपहर का, तो अगर हम लोग ईस्ट की तरफ जाएंगे तो 15 डिग्री ईस्ट जाते ही एक घंटा हम आगे चले जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्तों। ठीक उसी प्रकार मेरे दोस्तों अगर 30 डिग्री ईस्ट जो होगा 2 घंटा आगे होगा, इसका मतलब वहाँ पे कितना 2 बज रहा होगा दोपहर का 2 p.m. एंड अगर हम लोग आते हैं लाइक 15 डिग्री वेस्ट तो वो एक घंटा पहले हो जाएगा, दैट इज़ 11 a.m. और अगर वही 30 डिग्री वेस्ट तो ये 2 घंटा पहले यानी कि 10 a.m. ये इस पैराग्राफ में बताने की कोशिश की गई है। दैट्स ऑल। ये आप देख सकते हैं पिक्चर के माध्यम से, जैसे 15 डिग्री हम लोग जा रहे हैं वो एक एक घंटा हम लोग आगे जा रहे हैं। ठीक है, यही यहाँ पे बताने की गई मेरे दोस्तों। एंड दैट्स ऑल। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। The same method can be used to calculate the local time of any place on earth, but it would not be convenient for a country to use many local times. That is why most countries adopt a standard time based on the meridian passing through them. Indian Standard Time, that IST, is 5 hours 30 minutes, also known as 5.5 hours, ahead of the local time at Greenwich, called Greenwich Mean Time or GMT. तो ये क्या दोस्तों बता रहे हैं कि जो हमने ऊपर जो मेथड सीखा उसी माध्यम से सारे लोकल टाइम हम लोग डिसाइड कर सकते हैं पृथ्वी पर। ठीक है, लेकिन ये एक देश के लिए एक टाइम मतलब इतने सारे टाइम जोन्स रखना बहुत ख़तरनाक होंगे, है कि नहीं। हमारे फ्लाइट के टाइमिंग्स अलग होंगे और फिर सबके अलग अलग टाइमिंग को हमें बताना पड़ेगा कि हम इस जगह पे ये टाइमिंग के मुताबिक ये फिल्म दिखाया जाएगा या फिर ये शो आएगा। तो एक देश को मैनेज करने के लिए बहुत ही मुश्किल का काम है। तो इसलिए एक पूरे देश के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम बनाई जाती है। ठीक है, तो हमारे भारत जो देश है उसका भी अपना खुद का स्टैंडर्ड टाइम है जो 5 घंटा 30 मिनट आगे है ग्रीनविच मीन टाइम के। ठीक है, तो अगर ग्रीनविच मीन टाइम अगर अगर जीएमटी यानी कि अगर लंदन में एग्जैक्टली 12 बज रहा है तो इनफैक्ट हमारा इंडिया 5.5 घंटे आगे होंगे, यानी कि हमारा शाम हो रहा होगा 5:30 अप्रॉक्स, है कि नहीं। ये समझा है इस पैराग्राफ में। All these standard times, okay, are organized in time zones which broadly follow the zones of 15 degree in the graph. But let us consider the world map below. We can see that the lines dividing the time zones are not fully straight. Okay, this is because they have to respect each country's standard time and therefore tend to follow international borders. Okay, the numbers written inside some countries are the numbers of the hours to be added to GMT to get their standard times if they have a positive sign, okay, or subtracted from GMT if they have a negative sign. तो दोस्तों ये क्या बता रहा है कि अलग अलग देशों के साइज़ अलग अलग है कि नहीं। तो वो अपना उनका जो टाइम जोन है वो भी उसको झुका दिया गया है, उसको बेंड कर दिया गया है ताकि वो एक देश के अंदर में आएंगे तो उस एरिया में वो टाइम फॉलो अप होगा। दैट्स ऑल। अभी देखिए आपको इस पिक्चर के माध्यम से और ज़्यादा समझ में आएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए पैसिफिक ओशियन के ऊपर जो ये जो आ रहा है कैसे झुका हुआ है ना। इनफैक्ट यहाँ पे कनाडा में भी देखिए किस तरह से यहाँ पे झुके हुए कितने टाइम जोन्स है ना। यूएस का भी झुका हुआ है एंड इस तरीके से सारे देश का झुका हुआ है, ऐसा नहीं कि हर जगह स्ट्रेट ही है। सो अप्रॉक्सीमेटली मतलब जो भी उस जगह का टाइम जोन है ना नियरेस्ट माना गया है, जो भी या फिर द मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री या फिर जो एक देश का जो मेजॉरिटी पार्ट जो भी है तो उस माध्यम से दिखाया गया है। टाइम जोन्स अलग अलग बने हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ चलते हैं मेरे दोस्तों। सिमिलरली द ग्लोब दैट इन फिगर 1.9 centered on earth shows a standard time with respect to GMT, okay, for few countries. Finally, while the prime meridian was fixed at the Greenwich, the opposite line at approximately 180 degree longitude is called the international date line. तो दोस्तों ये क्या कह रहा है कि जिस तरीके से हम 0 डिग्री मेरिडियन प्राइम मेरिडियन हो गया तो उसके जस्ट अपोजिट उसके जस्ट पीछे अगर पीछे जाएंगे तो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड उसको बोलते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। ओके, सो एज यू कैन सी ऑन द मैप द +12 and the -12 time zones touch each other at this line. Okay, if you cross it by a ship
or plane, you need to change the date in a watch. Okay, if you cross it traveling eastwards, you subtract a day, okay, say Monday to Sunday. And if you cross it traveling westward, you add a day from Sunday to Monday. तो दोस्तों ये क्या कह रहा है कि लाइक अगर आप इंटरनेशनल जो डेडलाइन है दैट इज़ 180 डिग्री वेस्ट या फिर 180 डिग्री ईस्ट, दोनों एक दूसरे पे ही गिरती हैं, फिर एक दूसरे पे ही बनती हैं, तो उसको हम लोग +12 -12 जो है वो भी एक दूसरे के ऊपर ही गिरते हैं। तो अगर हम उस लाइन को क्रॉस करते हैं, है ना, अगर उस लाइन को हम लोग अगर ईस्ट वर्ड की तरफ क्रॉस करते हैं तो एक दिन जो है हमारा घट जाता है। ठीक है, हमारे अपने वॉचेस में या फिर हमारे डिजिटल डिवाइस जो भी हम कैरी कर रहे हैं तो उसमें एक दिन घटाना पड़ता है ना। अगर हम लोग सोमवार से मतलब जा रहे हैं तो एक जो है घट के हम लोग संडे को आ जाएंगे। ठीक है, अगर हम लोग वेस्टवर्ड की तरफ जा रहे हैं यानी कि वेस्ट दिशा की ओर जा रहे हैं तो हम एक दिन उसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, संडे है, अगर मान लीजिए संडे है हमने क्रॉस कर लिया तो मंडे हो जाएगा। ठीक है, वी सेड दैट द इंटरनेशनल डेट लाइन इज अप्रॉक्सीमेटली एट 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड as it deviates in places to avoid dividing some countries into two different days। ठीक है, दैट्स ऑल। तो ये बता रहा है मेरे दोस्तों कि एग्जैक्टली उसके पीछे है। अब यही सब था इस चैप्टर में एंड दैट्स ऑल। आई होप यू अंडरस्टूड इट एंड आप मेरे साथ इंजॉय किए इस चैप्टर को पढ़ते वक्त। ओके, डू लाइक इट एंड आई वॉन्ट यू ऑल पीपल टू प्लीज़ ओके सब्सक्राइब माई चैनल, like this video, and do share with all the other people whoever is in need of this chapter। and अगर आपको और भी कुछ जानना है इस चैप्टर में तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताएं एंड दैट्स ऑल। थैंक यू।